السلام علیکم اسٹوڈینٹس، تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فنکشنز آف سیل میمبرین. کلاس 11 کا ٹاپک ہے. چونکہ آج تک ہم نے پڑھا ہے کہ سیل میمبرین کیا ہوتا ہے، اور سیل میمبرین کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے اسٹرکچرز دیے ہیں، جیسے لیملر ماڈل ہے، سینڈوچ ماڈل ہے اور فلوئڈ میوزک ماڈل ہے. تو میں نے آپ کو الگ الگ دکھائے ہیں. تو اسٹرکچر آف جو یہ ماڈلز ڈفرینٹ ماڈلز دیے گئے ہیں ریگارڈنگ دا اسٹرکچر آف پلازما میمبرین، یہ تو ہم نے آلموسٹ سارے ڈسکس کیے ہیں. تو آج ہم اس کا لاسٹ والا کوشچن دیکھ رہے ہیں کہ فنکشنز آف سیل میمبرین کیا ہے. اگر جو سیل میمبرین ہوتا ہے کور کیے ہوتا ہے سیل کو باہر سے یا سیل آرگنری کو باہر سے، اس کو سیل میمبرین کہتے ہیں یا پلازما میمبرین کہتے ہیں. تو ایکچولی اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ So students, there are different functions which are performed by this cell membrane, and out of these many functions, some important functions of cell membrane are discussed as below. تو نمبر 1 یہ ہے کہ cell membrane separate the cells from the external environment. چونکہ سیل ہوتی ہے، سیل کے اندر سائٹوپلازم ہوتا ہے، نیوکلس ہوتا ہے، نیوکلولس ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیفرنٹ سیلولر آرگنلیز ہوتے ہیں. اور جو یہ سیل میمبرین ہوتا ہے یہ اس سیل کے سارے اسٹرکچر کو، اس سیل کے سارے آرگنلیز کو کور کر کے ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک بیریئر بناتا ہے اور اس کو یہ الگ کرتا ہے، سپریٹ کرتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے. باہر کا انوائرمنٹ جو بھی ہو اس سے اس سیل کے جو اندر کا انوائرمنٹ ہے اس کو یہ سپریٹ کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ایک بیریئر سا بناتا ہے. تو یہ اس کا پہلا کام ہے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ they cover cellular organelles, thus help them to maintain their identity, internal environment and functional individuality. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل کے اندر جو بھی آرگنلیز ہوتی ہیں ان کو یہ سیل میمبرین کور کرتا ہے. تو سپوز انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، مائٹوکونڈریا ہے، گولگی باڈیز ہے، نیوکلس ہے، کلوروپلاسٹ ہیں، پلاسٹڈس ہیں. تو جو ڈفرینٹ سیلولر آرگنلیز ہے جب یہ ان کو کور کیے ہوتا ہے تو کیونکہ ان سے ہم ان کی آئیڈینٹی کو دیکھتے ہیں. پلازما میمبرین یہ اس کی انڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہے جو اس کا اسٹرکچر الگ ہوتا ہے، گولگی باڈیز کا الگ ہوتا ہے، رائبوزوم اس کا الگ ہوتا ہے، پلاسٹڈس کا الگ ہوتا ہے. لیکن باہر سے جو پلازما میمبرین اس کو کور کیے ہوتا ہے تو ہمیں ایزیلی آئیڈینٹیفیکیشن میں ملتی ہے، یہ ہیلپ ہوتا ہے کہ کون سا یہ سیلولر آرگن کیا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. تو یہ سیلولر سیل میمبرین جو ہے اس میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، چاہے رائبوزوم ہو، چاہے انڈوپلازمک ریٹیکولم ہو، چاہے گولگی باڈی ہو، تو اس کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کو بھی مینٹین کرتا ہے. اور اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے، اس کی انڈیویجولٹی کو، اس کے فنکشنل نیچر کو بھی مینٹین کرتا ہے. سپوز رائبوزومز کا کام ہے پروٹین بنانا، تو اسی طرح سے گولگی باڈی مطلب وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو آلریڈی پڑھا ہے. تو ان کا جو انڈیویجول نیچر ہوتا ہے، فنکشنل نیچر، وہ بھی مینٹین ہوتا ہے اسی سیلولر میمبرین سے. تو تیسرا کام یہ ہے کہ پلازما میمبرین پروٹیکٹس دی سیل فرام انجوری. سیل جو ہوتی ہے اس کو باہر سے پلازما میمبرین کور کیے ہوتا ہے، اور اس کورنگ سے یہ اندر والے سیلولر سٹرکچر کو، سیلولر آرگنلیز کو، سیل کے اندر جو بھی مٹیریل ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے انجوری سے. جیسے ہمارا سکل ہے، یہ ہمارے برین کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے ریبس ہے، سٹرنم ہے، یہ ہمارے ڈیلیکیٹ آرگنز جو ہیں، لنگس ہیں، ہارٹ ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اسی طرح سے پلازما میمبرین، چونکہ یہ ایک چھوٹا سا یونٹ جو ہے لائف کا سیل، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈیمیج ہونے سے. تو نیکسٹ فنکشن امپورٹنٹ جو ہے اس کا کہ
Cell membrane form different junctions for keeping cells together by organic connections. यानी कि different cells एक दूसरे के साथ मिल के कुछ ऑर्गेनिक कनेक्शंस बनाते हैं, जंक्शंस बनाते हैं. तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट सेल जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. ये भी इसी सेल मेम्ब्रेन का ही काम है कि ये दूसरे सेल के साथ एक सेल को कनेक्ट करता है जंक्शंस पे, डिफरेंट स्पॉट्स पे. तो नेक्स्ट काम ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव सिलेक्टिव परमेएबिलिटी allowing only selected substances to pass through the membrane. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये पूरा परमेबल नहीं है बल्कि ये सेमी परमेबल है, यानी कि सिलेक्टिव परमेबल. तो सिलेक्टिव परमेबल से मुराद ये है कि ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने देता है, अपने से होके गुजरने देता है, लेकिन कुछ चीज़ों को रोकता है. जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बताया कि सपोज़ हम अपने बाजू की स्किन पे हल्दी वाला वाटर डालते हैं, तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हल्दी वहाँ पे ही होती है लेकिन पानी को एब्जॉर्ब किए होता है. वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं स्किन में, इसके बाहर जो ये प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसको कवर किए होता है. ये सेल मेम्ब्रेन वाटर को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर जाए, लेकिन टर्मरिक यानी कि हल्दी को नहीं. इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है, यानी कि कुछ चीज़ों को अलाउ करता है अंदर जाने में और कुछ चीज़ों को रोकता है. इसी और नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसका नेक्स्ट फंक्शन जो है वो ये है कि मेम्ब्रेन्स हैव कैरियर प्रोटीन्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि वहाँ पे लिपिड बाइलेयर होती है और फिर वहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं दोनों साइड्स. इंट्रिंसिक अंदर से भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बाहर से भी होते हैं, और वो प्रोटीन्स मिल के चैनल्स बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं. तो वो चैनल्स जो होते हैं, टनल्स जो होते हैं, वो किस काम आते हैं? वो डिफरेंट थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं. तो इस तरह से जो ये मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ये अपने आप को बाइंड करते हैं किसी सब्सटेंस के साथ, फिर इन चैनल्स या इन टनल्स के ज़रिए से इस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं, यानी कि ये प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज कैरियर्स. सो मेम्ब्रेन्स आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. तो नेक्स्ट फंक्शन जो ये है कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स ऑन देयर सरफेस. यानी कि जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि ATPase होता है, वो ATP को बनाने में मदद करता है, फिर ATP से एनर्जी हासिल करने में मदद करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में. तो ये एंजाइम्स जो होते हैं ये इसी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं. ये डिफरेंट फंक्शंस को होने में, डिफरेंट रिएक्शंस को कंप्लीट होने में मदद करते हैं. जैसे कि ATPase है, ये ATP सिंथेसिस और रिलीज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम ATP में मदद करते हैं. यानी कि जब एनर्जी ATP को बनना होता है तब भी ATP हेल्प करता है, और जब ATP ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो भी उसमें भी इस एंजाइम यानी कि ATPase का काम होता है. तो इस तरह से हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रिजिडिटी देता है एक सेल को, ये इसको बचाता है इंजरी से, ये इसको सेपरेट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से, ये सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ता है, कम्युनिकेशन में मदद देता है, और सिलेक्टिव परमेबल होता है, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है अंदर आने में, कुछ चीज़ों को नहीं. इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं जो वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद लेते हैं, तो फिर कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है. और सेल मेम्ब्रेन में एंजाइम्स भी होते हैं, वो एंजाइम्स वहाँ पे कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट होने में मदद करते हैं. तो नेक्स्ट काम जो है इसका सेल मेम्ब्रेन का, ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस मैं बता रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन्स के. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का ख़ास ख्याल रखिएगा. तो नेक्स्ट फंक्शन जो है मैंने लिखा है, देयर आर मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स विच आर यूज्ड एज बल्क इनटेक ऑफ मटेरियल्स बाय एंडोसाइटोसिस.
انडोसाइटस تو मैंने पढ़ाया है आपको, कुछ चीज़ों को सेल अपने अंदर ले जाता है। तो वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाला जो रीजन है, अंदर वाला जो पार्ट है, वहाँ इनफोल्डिंग्स होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इनफोल्डिंग्स। वो इनफोल्डिंग्स इसका जो वॉल्यूम है सेल मेम्ब्रेन का वो उसको बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी वक्त ज़्यादा मकदार में कोई मटेरियल, किसी मटेरियल को अंदर लेना होता है, तो वो इनफोल्डिंग्स से ये मेम्ब्रेन इसको इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ले जाता है। तो नेक्स्ट फंक्शन है कि जैसे ये सेल मेम्ब्रेन बहुत सारी चीज़ों को इनफोल्डिंग से अंदर लेता है, वैसे ही ये कुछ चीज़ों को बाहर भी फेंकता है, एक्सक्रीशन करता है। तो उस वक़्त कौन सी प्रोसेस वहाँ पे एक्ट करती है, वो है एक्सोसाइटस, यानी कि किसी चीज़ या किसी मटेरियल को सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ भेजना। एक्सोसाइटस तो इंडोसाइटस हो गया, किसी भी मटेरियल को बाहर से सेल के अंदर की तरफ ले जाना। तो इंडोसाइटस में भी मदद देता है सेल मेम्ब्रेन, और एक्सोसाइटस यानी कि किसी मटेरियल को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, जिसके ज़रिए से हम इम्पल्स सेंसेशन हमारी बॉडी में आता है, काम करते हैं, हम महसूस करते हैं। तो वो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, एक नर्व सेल का दूसरे नर्व सेल के साथ जब जोड़ होता है तो वहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है, यानी कि ये सेंसेशन, ये इम्पल्स जब एक सेल में होती है तो दूसरे सेल तक इन्हीं मेम्ब्रेन के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। इस तरह से ये इम्पल्स, ये सेंसेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो वहाँ पर भी रोल बनता है इस सेल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट जो लास्ट वाला फंक्शन मैंने लिखा है कि इन सम सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन मूवमेंट बाय डेवलपिंग फिब्रोप्लास्ट्स और सीडोपोडिया सच एज इन एम्यूबा। एम्यूबा तो आप सबों ने पढ़ा होगा है, यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिज्म है एम्यूबा। तो वहाँ पे जो इसका बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, उनको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। तो वो सीडोपोडिया एक्चुअली यही सेलुलर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है वहाँ पे। और एम्यूबा चूँकि यूनिसेलुलर, तो मान लीजिए कि ये भी एक सेल है। तो जब वहाँ पे सीडोपोडिया बन गया तो वो उससे वो गुज़ा भी ट्रैप करता है, उससे वो एक जगह से दूसरी जगह चलता भी है। तो ये मूवमेंट करने में भी मदद करता है कौन, ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का 11th क्लास ज़ूलॉजी के लिए। तो हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। होप स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। और खुश रहे, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।